लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के जो हमारे लेजेंड है ना, वो सिर्फ फाइनेंस या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि कंप्लीट इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड है। उनका एक्सपीरियंस फाइनेंस फील्ड में मोर देन 2 डेकेड्स का है। मोर देन दैट, जो मैं आप सभी से बात करता हूं, जो मैं आप सभी को बताता हूं कि 21 क्राइटेरिया मॉडल जिसके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते हैं हमारी सभी इन्वेस्टर के लिए, उस मॉडल को काफी अच्छा इंप्रूव करने के लिए लास्ट ईयर इन्होंने काफी ज्यादा मेरी हेल्प करी थी। ही इज वन गाय जिनसे मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुई। ही इज नन अदर देन एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, निमिष सर। चलिए सबसे पहले निमिष सर का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। निमिष सर, सबसे पहले आपका स्वागत है आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे। थैंक यू, हैप्पी टू कम ओवर हियर। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आज के दिन है वो ये कि इक्विटी शेयर मार्केट पहले करेक्ट हुआ, फिर वहां पे जो बाउंस बैक आया वो बहुत ही ज्यादा सुपर्ब था, और अब लग रहा है कि यार ये बाउंस बैक का फ्यूल आखिरकार कब तक चलेगा इक्विटी शेयर मार्केट में। इक्विटी शेयर मार्केट का हमारा यहाँ से आउटलुक क्या हो? See, let's step back and first understand where are we today. आज हम कहाँ पे हैं? So I think it is a very, very interesting market. What has happened? The smartest rally that we have seen. 4 months में मार्च में हम कुछ अलग बात कर रहे थे, आज कुछ अलग बात कर रहे हैं। तो डिफिकल्ट लोगों के फोन आए थे कि हम मार्च में टीवी पे जाके क्यों बोल रहे थे लोगों को खरीदने के लिए, when COVID start हुआ था तभी. So it is a very and look at today's behavior. People don't think there is any COVID in the country, right? That's the way the markets are going, the real markets. So when I look back, I step back, what has been happening in the last 3 years? In the last 3 years, what was happening that some stocks, while we were looking at the market ऊपर जा रहा है, but actually it was a very concentrated rally. What was happening? I am saying from December 2017 say till March 2020. What was happening? That some stocks, 10 stocks were going up. So if you see the market caps overall Nifty का composition देखे, there were 10 stocks which had 60% of the market valuation in that. There were 10 stocks which are controlling 60% of the market cap in this country of Nifty, and the weightage of those 10 stocks was 60%. So, and those 10 stocks were going up. So, market overall बहुत अच्छा लग रहा था अपने को। अगर हम last December 2017 से आज तक देखें, तो दिखता है कि market 48% has gone up, right? But when you see the composition of those 48%, the top 10 stocks have done exceedingly well, and the rest of the market has not done that well. So there is a huge difference between top 10, and if you see overall returns of the last 10 years, it is 7.8%. Overall returns of the last 5 years is 7.4%, and practically market EPS return ultimately in the long term market will follow EPS growth. तो long term में कितना EPS growth हुआ है? 4.3. 10 years में EPS growth 4.3 है. Last 5 साल में corporates ने ज्यादा पैसा नहीं बनाया है. If you see Nifty 50 का EPS growth, it is less than 1% is the EPS growth. So in this kind of environment, when the EPS growths are so low, it is not possible in the long term to markets run away beyond EPS growth. So in the long term, market will be always bound by EPS growth. That's my first proposition to you. Second, what is happening? People try to sell big time, markets नीचे गए, तो सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैव गॉट टुगेदर सेइंग दैट लिक्विडिटी दीजिए आप। तो मार्केट में इतना लिक्विडिटी कभी देखा नहीं गया है। लुक एट द यूएस फेड, द वे द बैलेंस शीट ऑफ यूएस फेड इज एक्सपैंडेड, तो लोग ने बहुत सारी लिक्विडिटी दे दी है। आज यूएस में जिसको भी जितनी लिक्विडिटी चाहिए, आप कोई भी बॉन्ड जाके सेंट्रल बैंक को बेच सकते हो। इट इज टू दैट एक्सटेंट दैट द लिक्विडिटी हैज बीन प्रोवाइडेड, एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। सो टिल नवंबर वेयर इज यूएस इलेक्शंस, I believe this easy liquidity positions of countries across the world, US central bank देख लीजिए, जापान central bank देख लीजिए, European central bank देखिए, सब पैसे market में because of the COVID impact, everybody has put money with the people. What has happened? People have gone and increased their equity allocation. So दो चीज हुई है, एक है central banks push कर रही है, central banks पैसे push कर रही है at very low rates और zero rates, right? Almost जब इतने सारे पैसे world में लेस देन 0% पे है, राइट? हमें तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा था। ये इकोनॉमिक्स जो सारी हमने पढ़ाई की थी, मैंने और आपने जो भी पढ़ाई की थी, हमने इकोनॉमिक्स उस बेसिस पे पढ़ी थी कि इंटरेस्ट रेट्स पॉजिटिव होते हैं, राइट? अभी इकोनॉमिक्स कैसी चलेगी जब इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव, उस पे थिंकिंग होना है अभी, राइट? व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर नेगेटिव, हाउ विल इकोनॉमिक्स वर्क? सो इतना सारा पैसा इतने कम ब्याज दरों पे है, राइट? So लोगों डाल के इक्विटी में डाल रहे हैं। और दूसरा है बिकॉज ऑफ कोविड a lot of people are sitting at home. So when people are sitting at home, अगर यूएस में एक साइट है रॉबिनहुड करके,
सब लॉग इन कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंडिया में भी वही हो रहा है। बहुत सारे लोग घर पे बैठे हैं और बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, right? So right now the rally is not that FIIs are pumping huge amount of money in the market every day. It is the individuals who are sitting at home and are punching in orders all the time. So it is the individual based rally. The final investor has come into the market. The retail investor has come into the market. So this is the time to actually be very cautious. When the retail investors start coming into the markets so one needs to be very, very cautious. The market is quite heavily priced. If you see the PE ratio, the past PE ratio, we are talking about a PE ratio of 28. 28 का PE है हिस्टोरिक PE का. अगर फॉरवर्ड PE लेता हूं तो भी 20 का PE है. 20 का PE is not a cheap market. So what I'm trying to do, while central banks and low interest rate in the world is pushing the market up, the reality will always be controlled by EPS being under control. Ultimately तो EPS को follow करेगा market. So अभी liquidity driven market because of HNIs or because of central banks है, but at the same time earnings growth कैसी होगी, और कोविड टाइम्स में अपनी earnings growth बहुत uncertain है. ये साल में जितना अनसर्टेनिटी देखा गया है कॉर्पोरेट्स के लिए, उतना मैंने मेरे 28 इयर्स के करियर में नहीं देखा है, राइट? इतना अनसर्टेनिटी के आज किसी को बात करके मतलब नहीं है कि 2021 में प्रॉफिट कितना होगा, राइट? What is the point in analyzing that when the companies themselves don't know whether their factories are going to remain open six days down the line, right? People are trying to project next 1 year's profit, but they don't know because of COVID impact. There are chemical companies which are going at all-time high. And I know that chemical companies are wondering whether their plant will be on 6 days down the line because of the COVID. So there are huge amount of uncertainties in the market. So one has to be very, very cautious in trading in this kind of market. सर इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि अभी सबको टेम्पटेशन हो रही है कि सब लोग एसआईपी करें. मार्च में सबके पास टेम्पटेशन थी कि एसआईपी स्टॉप करें. मतलब जब हमें पास्ट रिटर्न्स अच्छे लगते हैं हम एसआईपी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं. जब रिटर्न्स खराब होते हैं हम एसआईपी से दूर भागने की कोशिश करते हैं. ये पास्ट रिटर्न के बेसिस पे एसआईपी क्या करे सर इसका आउटलुक का? So I hope during your career you are able to change. You and your father, especially your father, has been doing a great job for a number of years where he has sincerely tried to educate investors in a big time. पंकज लाड़ा जी को मैं 15 साल से मैं उनके साथ डील कर रहा हूँ, और मुझे लगता है people like you, if you can go and explain people, मैं तो ट्राई करता हूँ, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ इतने सालों से, पर लोग प्रो साइक्लिकल होते हैं. साइकोलॉजी, इट इज नॉट दैट आई हैव फेल्ड और एनीबडी एल्स हैज फेल्ड, इट इज पीपल आर प्रो साइक्लिकल. दे वांट टू लुक एट पास्ट रिटर्न्स एंड देन इन्वेस्ट. अगर एज ओल्ड अगर आपके फादर से बात करें तो पंकज जी बोलेंगे जब मार्केट डाउन है तभी इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? जो लोग कॉन्ट्रा साइक्लिकल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कॉन्ट्रा साइक्लिकल पीपल मेक मनी, प्रो साइक्लिकल पीपल डोंट मेक मनी, राइट? बट essentially human psychology ऐसे ही है कि very few people can be contra-cyclical. Less than 1% of the people can be remain contra-cyclical. Most of the people are always pro-cyclical. यानी वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाते हैं, जब आपके लेबर पैसे बनाते हैं, जब आपके फ्रेंड्स आके बोलते हैं मैंने तो ये 20 रुपीज में खरीदा था 200 हो गया, वो स्टोरी सुन के आप जाते हो मार्केट में. तो पीपल आर pro-cyclical. बट व्हेन रिटर्न्स आर ऑलरेडी मेड, इंडिया में क्या होता है, बाकी सारी चीज हम सेल में खरीदते हैं, राइट? अगर फोन लेना है तो देखते हैं कहाँ पे सेल चल रहा है, ड्रेस लेना है तो सेल देखते हैं, पर स्टॉक्स लेना है तभी सेल नहीं देखते. मार्च में सेल चल रहा था तभी लोग बोल रहे थे सिर्फ स्टॉप कर दो, यानी नए खरीदना बंद कर दो, और अब जब मार्केट वापस ऊपर चला गया तो उनको ज्यादा स्टिक लेनी है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये. सो दिस विल हैपन टिल, आई होप यू आर एबल टू चेंज इट इन योर करियर. यू आर अ यंग मैन, you will be able to change by continuous education. We have to move people from being pro-cyclical. As an advisor, you have done your job. If you can make people from pro-cyclical, if you can make them contra-cyclical, कि मार्केट आपके क्लाइंट्स आपको फोन करने चाहिए जब मार्केट डाउन जाता है कि मुझे और इन्वेस्ट करना है, राइट? बिकॉज यू हैव टू बी contra-cyclical. But that is easier said than done. So what we have done as an AMC and what I will strongly advocate you also as an advisor to do, क्रिएट एसेट एलोकेशन मॉडल्स. मैं एसेट एलोकेशन यानी कोई जार्गन नहीं यूज कर रहा हूँ. एसेट एलोकेशन यानी मार्केट जब कम होगा तब आप इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाइए, जब मार्केट बढ़ जाता है, हाई हो जाता है और पास्ट रिटर्न्स अच्छे दिखने लगते हैं तब यू शुड बिकम मोर केयरफुल. सो पीपल शुड बिकम मोर केयरफुल व्हेन द मार्केट्स एंड द पास्ट रिटर्न लुक्स गुड. पास्ट रिटर्न देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, फंडामेंटल्स देख के आपका एसेट एलोकेशन कीजिए और पास्ट रिटर्न देख के मत कीजिए. दैट इज द फंडामेंटल. एज एन एडवाइजर, your firm has done a very good job over the last so many years through generations.
And I hope that you are able to, during your lifetime, you are able to change your clients, at least your clients. I'm not expecting you to change the world, but at least I expect you to change a lot of people to be in contra-cyclical. And then, so we have launched strategies like balance advantage fund, asset allocator fund. वो funds क्या करते हैं कि जब मार्केट में मंदी होती है तभी जाके खरीदते हैं और जब तेजी होती है तब थोड़ा कट कर देते हैं. So that's what they keep on doing. And they do it on everyday basis. और म्यूचुअल फंड के अंदर आप करते हो तो टैक्स भी नहीं लगता, राइट? आप खुद करने जाओगे वो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा. म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं तो उस पर टैक्स भी नहीं लगता है और सिस्टमैटिक फॉर्मूला बेस्ड, एल्गोरिदम बेस्ड पे होता है रोज का. किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है. जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है मेरा ट्रेडर अपने आप उसके पास फॉर्मूला है कि कितने प्राइस टू बुक पे कितना इक्विटी होना चाहिए, तो वो डाइवेस्ट कर देता है. सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज दैट विल वर्क. आई बिलीव द मार्केट्स, a high market, a not so cheap market, which is based on flows and not strong fundamentals, is prone to a lot of volatility. तो मार्केट में volatility यहाँ से बढ़ेगी. So अगर मार्केट में volatility बढ़ेगी, the best thing your advisors, as an advisor, you should do is to get more and more people into good asset allocation products. Absolutely right, sir. And thank you so much for having faith on me. It means a lot. सर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे एसेट एलोकेशन का. एंड आई बिलीव कि आईसीआईसीआई में जितना मेरा है, अराउंड लास्ट 22 ईयर्स में एक भी डिफॉल्ट आईसीआईसीआई में नहीं हुआ है. बट जस्ट बिकॉज कुछ डिफॉल्ट्स हुए हैं ऑफ लेटली, मे बी फ्रैंकलिन का केस हुआ है या फिर और भी ऐसे जो केस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आज इन्वेस्टर्स डेट मार्केट में और डेट प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा सा कॉशियस है और थोड़ा सा डरा हुआ है. आपका इस चीज पे क्या टेक है और कैसे हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए? See, debt, I am very, very clear. Debt में क्या होता है? Upside is limited. आपको या तो 7% मिलेगा या 7.5 मिलेगा या 8% मिलेगा. But downside बहुत बड़ा है, right? Because आपके 100 रुपीज लगे हुए हैं. जब किसी को आप डेट में, हम क्या करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रैक्टिकली उनके वी आर डेट इन्वेस्टर्स इन द कंपनी. हम उनको पैसे देते हैं सगे आपका बिजनेस कीजिए. अगर अपसाइड 7 to 9% का है, डाउनसाइड पूरा 100 रुपीज जा सकता है आपका, राइट? रिस्क तो पूरा 100 रुपीज पे है. तो इक्विटी में तो रिस्क लेने से आपको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है. डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है. डेट में डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इन डेट, इफ यू एंड यू हैव वर्कड विद अस अर्लियर, you know outside our gate what we have written, SLR, safety, liquidity and then return. So मेरा सारा फोकस सेफ्टी और लिक्विडिटी पे है कि अगर किसी को 100 रुपया दिया है तो एक साल के बाद अपने 108 रुपया वापस आ जाना चाहिए, right? That is the whole mindset that one should work with. And it is a very 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 carefully done SLR, सेफ्टी और लिक्विडिटी पे फोकस करो. अगर अपने पैसे चाहिए तो कल अपने को मिलना चाहिए. मेरा क्रेडिट रिस्क फंड में हम 12,500 crores से we came down to 6,500 crores, right? And we were able to give every rupee back. We cannot envisage a situation where I tell your investors that I cannot give you money back, right? It is just not possible. अगर मेरा फंड जीरो हो जाता था तो भी मैं सबका पैसे तो वापस दे देता. So that is the mindset with which we run. So safety, liquidity and return. Return incidental है. देखिए अपने को तो अपना रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है. कैपिटल वापस आना चाहिए, रिटर्न जो मिला वो मिला. So when a lot of people keep on asking me, why were you not in the other NBFCs? ILFS हुआ, दीवान हुआ, हम क्यों नहीं फंस गए उसमें? क्योंकि हमको लगा था सारी तीनों AAA कंपनीज थी. HDFC भी AAA कंपनी थी, ILFS भी AAA कंपनी थी और दीवान भी AAA कंपनी थी. तीनों AAA थी. एक में आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको 7% ही रिटर्न मिलता था HDFC में, जबकि दीवान में 7.75 मिल रहा था. ILFS में इन्वेस्ट करो तो 8.25 मिल रहा था. पर हम we were not lured by the higher returns, right? We said with the safety, I would rather focus on the safety rather than try and get incremental return. Now as a company, why were we able to avoid that? The debt में अगर बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, उसमें एक भी पूरे 2 साल से मार्केट में गोलियां चल रही है. कोई एक महीने ये इसका न्यूज आता है, दूसरा महीना दूसरे का न्यूज आ रहा है. हमारे को कोई गोली क्यों नहीं लगी आज तक? As I understand it, the 3 things that we have done, we have not allowed, first thing, हमारे पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन नहीं है, राइट? देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ एसेट इन वन पर्टिकुलर. 80 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट किया आपने. अगर मेरे को 100 रुपीज दिए हैं तो 100 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 80 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट. तो आपका तकरीबन एक कंपनी में 1 to 2% ही लगेगा, राइट? दैट हैज बीन द होल एंडेवर दैट व्हेन यू इन्वेस्ट,
it should be 2 to 3%. It should not exceed 2 to 3% of the portfolio. That was the whole endeavor while restricting exposures into companies. So concentration of asset नहीं होने दिए, concentration of liability नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम तो 300 सिटी में distributed, right? People across India have invested with us. No single borrower has, there are not big investors. It is a liquid fund. It is a retail fund. So हमने वो सारी जो लेनी है कुछ precautions, fund structuring में वो तो की है. But one of the most biggest differentiator is that there is a whole, there are 5-6 people involved. I cannot commit. I'm the CEO of the company. I cannot commit even 100 rupees to anybody. Because 6 people have to agree. 6 people have to sign. Physical signature हम करते हैं हर एक proposal पे. उसके बाद ही होता. Right? So unless physical signature हो, हम आगे नहीं बढ़ते हैं in a proposal. So that and 6 different people with 6 different mindsets. हम एक होता है credit manager जो अलग है. Risk manager, एक credit manager और risk manager दोनों sign off करते हैं वो proposal पे before the fund manager can buy. तो fund manager को तो है आपसे से ज्यादा interest आपके लिए लेके आए interest rate. But credit और risk manager तो independent. उनका return के साथ कोई लेना देना नहीं है. उनको तो ये देखना है कि principal वापस आएगा. तो credit और risk manager को देखना है कि principal वापस आएगा तो वो लोग sign off ही नहीं करेंगे अगर उनको लगता है principal पे risk है. Right? And fund manager has to go and get the maximum return for the investors. That is how the roles have been divided. तो एक आदमी का फोकस ही है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग. अभी ये सबका बॉस है ना, जो सीआईओ डेट है उसका बॉस है जो जिसने इक्विटी फंड मैनेजमेंट किया. जो मेरा मेन सीआईओ है, जो सीआईओ डेट जिसको रिपोर्ट करता है, वो है सीआईओ ओवरऑल जो है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, वो इक्विटीज बैकग्राउंड का है. तो क्या है, डेट वाले बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं पास का, बढ़िया एनालिसिस करते हैं कि क्या है. अगर हमने दीवान में पैसा नहीं दिया था तो हमने क्यों नहीं दिया था. When people ask me दीवान में क्यों नहीं दिया था, क्योंकि बैलेंस शीट पे बहुत क्लियर दिख रहा था कि उसके पास 8,000 करोड़ का कैपिटल था और वो 1,30,000 करोड़ का बैलेंस शीट चला रहा था. मेरा क्रेडिट मैनेजर उसको क्लियर ही नहीं करेगा, मेरा रिस्क मैनेजर उसको क्लियर ही नहीं करेगा. So we will not give long term money to that company which has got only 8,000 crores of capital and running 1,30,000 crores of balance sheet. That was a fundamental thing. Why were we not there in ILF? Because my equity fund manager, who's the CIO, could see that if every infrastructure company is in problems, he runs the infrastructure fund also. So he knows every infrastructure company in the country has got challenges. How come ILFS does not have challenges? How come it is AAA? Is there any other infrastructure company in the country which is AAA? So हमने कभी वो believe ही नहीं किया. So we were always cautious. Right? Not that we knew that there कुछ problem है या है, हमको नहीं पता था. पर हमको लगा था इक्विटी फंड मैनेजमेंट माइंडसेट से. सो डेट फंड मैनेजर रिपोर्टिंग इनटू इक्विटी फंड मैनेजर creates a very robust structure. So always focusing on SLR, always ensuring that we don't get swayed by interest rate, creating the right structures within the company has helped us for so many years and not allowing. इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है. जस्ट पास में लास्ट 22 साल से डिले नहीं हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होएगा. पर फ्यूचर में होएगा तो भी हमने इतना कंसंट्रेशन नहीं रखा है, हमने डिवाइड कर दिया है हमारा पोर्टफोलियो को. तो अगर किधर प्रॉब्लम होगा तो भी 1% 2% का प्रॉब्लम होगा जो मैनेजेबल हो. एंड जब ये सब हमने पहले भी दिखाया है, जब जीएसपीएल में हमारा इन्वेस्टमेंट में था, टेम्पररी कंपनी को प्रॉब्लम्स हो सकता है, राइट. तभी उनके साथ डील करने की क्षमता होनी चाहिए. एज आईसीआईसीआई गेस वी गेट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डील विद वेरियस पीपल, राइट. अगर कभी प्रॉब्लम होता है so you can talk to them on the phone and get your money. Means there is एक रिश्ता होता है, वो रिलेशनशिप के बिना हम पैसा देंगे भी नहीं, right? We should be able to call up for the right person in the company. So हमारे वहाँ JSPL में बहुत सारी हेडलाइंस आई थी पेपर में, पर एक दिन का भी कभी डिले नहीं हुआ, right? Because you know the promoter also knows that capital markets में डिफॉल्ट नहीं कर सकते, right? बैंकिंग में भी अगर आपका डिफॉल्ट चलता है तो भी कैपिटल मार्केट्स में डिफॉल्ट होगा तो आप मार्केट के बाहर चले जाएंगे. यू विल बी डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्ट. सो देयर इज अ एंड आई थिंक म्यूचुअल फंड्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दैट. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. सी अ बैंक ऑपरेट्स एज अ इकोनॉमी डेवलप्स. हमारी इकोनॉमी जो 20 साल पहले आप लोगों ने बिजनेस चालू किया था, आज से आपका इन्वेस्टर बहुत अलग है. द डिपॉजिटर एज अ इकोनॉमी डेवलप्स एंड एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री स्टार्ट्स ग्रोइंग, द डिपॉजिटर बिकम्स एन इन्वेस्टर. Your investors today are much more demanding than what they were 20 years back. Absolutely. Right? So the world is changing. So as the world changes, the depositor will become an investor.
राइट? वो इंटरमीडिएशन फ्रॉम बैंकिंग विल गो टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड. आप यूएस में देखिए, म्यूचुअल फंड्स इन यूएस आर बिगर देन द बैंकिंग इन यूएस, राइट? हमारे वहां तो म्यूचुअल फंड्स केवल 26 लाख करोड़ के हैं, राइट? और 130 लाख करोड़ है बैंकिंग में. उल्टा है, राइट? तो बैंकिंग इज 5 times bigger than mutual funds. Over a period of time, mutual funds will keep on growing because our intermediation costs are low. हम डेट फंड आपको कितने में दे रहे हैं? 1.6 में दे रहे हैं, 1.5 में दे रहे हैं, 1.7 में. उससे ज्यादा हमारा खर्चा नहीं होता है. और बैंक कितना मार्जिन देता है? बैंक का मार्जिन होता है 3% एंड अबव, राइट? प्राइवेट सेक्टर बैंक का मार्जिन देखिए 3, 3.5, 4% तक मार्जिन होता है प्राइवेट सेक्टर. एब्सोल्युटली राइट. तो हमारे खर्चे कम है, तो हम ज्यादा एफिशिएंट है. सो डेट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एडवाइजर्स, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द मनी, आपका बिजनेस भी वैसे बहुत ग्रो हो सकता है, बिकॉज डेट, मेरे हिसाब से ये कंट्री में डेट म्यूचुअल फंड बहुत बड़े हो जाएंगे. रिटेल ने इन्वेस्ट करना शुरू ही किया है, एंड देयर हैव बीन कपल ऑफ एक्सीडेंट्स इन द मार्केट, एंड इट इज गुड दैट लोगों को कॉशियस हो जाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी व्हेन यू सेड पीपल आर कॉशियस. मैं बरसों से ये बोल रहा हूँ दैट अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा रिटर्न देख के मत आइए. इंक्रीमेंटल रिटर्न मीन्स इंक्रीमेंटल रिस्क. डोंट टेक इंक्रीमेंटल रिस्क ऑन योर डेट. यू शुड नॉट बी लुकिंग एट पास्ट में किसने सबसे ज्यादा दिया और उसको दे दो. उसके पोर्टफोलियो देखो. फॉर एडवाइजर्स रोल इज टू सी हाउ द पोर्टफोलियो इज लुकिंग लाइक, वेदर पोर्टफोलियो में ज्यादा रिस्क तो नहीं ली है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली राइट सर. आई इवन रिमेंबर जब हमारी शायद मार्च में बात हुई थी क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड, पापा से आपके साथ बात हुई थी, तब यू आर वेरी बुलिश एंड कॉन्फिडेंट ऑन क्रेडिट रिस्क. बट आज भी अभी क्रेडिट रिस्क से रिलेटेड थोड़ा सा लोगों में डाउट है. इसके ऊपर थोड़ा सा एक लाइट दीजिए ना सर, कि अब क्रेडिट रिस्क का क्या करें सर. सो मैंने जो बोलना था, मैंने अभी तक सारा बोला, क्रेडिट रिस्क के बारे में बोल रहा था. हाँ. और दूसरा है कि हमारी एएमसी का नेटवर्थ है, कुछ 1100 करोड़ का नेटवर्थ है हमारा. उसमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा कौन सा होगा? 1100 करोड़ का नेटवर्थ है, उसमें से 340 करोड़ हमारा कंपनी का इन्वेस्टेड है बरसों से ये कंपनी क्रेडिट रिस्क फंड में. और हमने तो 1 रुपया नहीं निकाला और निकालना भी नहीं, राइट? सो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द क्रेडिट रिस्क फंड. वी हैव गॉन थ्रू द होल क्राइसिस इन द मार्केट. पूरी क्राइसिस, मार्केट में क्राइसिस हो गई. हमारे फंड में कोई फर्क पड़ा? जितना ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए 12,500 करोड़ का पोर्टफोलियो में था, उतना ही ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए ये 6,500 करोड़ के पोर्टफोलियो में ही है. आपका क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्रेडिट रिस्क फंड में आज तक? एब्सोल्युटली गुड. बहुत अच्छा रहा सर एक्सपीरियंस. बट बीच में क्या होता है, जब मार्केट में न्यूज़ आती है तो डर लगता है. नहीं, डर तो हमेशा लगना ही चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी कि आपको डर लगता है. जो एडवाइजर डर डर के काम करे वही अच्छा करेगा मेरे हिसाब से, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एडवाइजर्स को भी डरना चाहिए. अपने आपके क्लाइंट के हार्ड अर्न मनी है, राइट? दे आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग विथ योर एक्सपर्टाइज. सो आप डरे हुए होने चाहिए, आप कॉशियस होने चाहिए, हम भी डरे हुए होने चाहिए, क्योंकि we are managing public money. There is a huge responsibility. We have got 3,75,000 crores of public money to be invested. 3,75,000 crores बहुत पैसे होते हैं. So बहुत बड़ी responsibility पे हमारे पे, और आप पे भी बहुत बड़ी responsibility है, because आपके investor के पैसे हम manage कर रहे हैं. So we need to be more and more careful. सर, इस कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में एडवाइजर्स का क्या रोल एक्चुअली होता है, या एडवाइजर्स का रोल नहीं होता है? आपका क्या टेक है सर इस चीज पे? You guys have done a very good job. आपके फादर जो कर रहे हैं इतने बरसों से, जो आपके फादर, लोगों का कॉन्फिडेंस है आपके फादर में, राइट? एक ट्रस्ट. See, our business is about trust and value addition. But I think 90% is trust. लोग आपकी ब्रांड में, हमारे बिजनेस बहुत सिमिलर है. हमारे पे लोगों का भरोसा होना चाहिए. ट्रस्ट. द बिजनेस इज ऑल अबाउट रिटर्न ऑन ट्रस्ट, राइट? दिस बिजनेस, अगर अपनी क्रेडिबिलिटी होगी, ब्रांड की क्रेडिबिलिटी होगी, आपकी ब्रांड की, मेरे ब्रांड की, तो ही लोग अपने हार्ड अर्न मनी पैसे दे सकते हैं अपने को. सो आई थिंक द मेन थिंग इज दैट पीपल शुड ट्रस्ट अस. सो पीपल वुड सी इन योर केस और इन माय केस, पीपल वुड सी दैट एक्सपीरियंस, और ट्रस्ट एक्सपीरियंस से ही आता है. हमारे साथ डील करके आपके क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या रहा है पास्ट में. I think instead of looking at past returns, people should look at past behavior. मैं जब मेरे डेट फंड में, I'll give you a parallel. जब हम किसी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर किसी के इक्विटी फंड्स में, कोई कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई कंपनी के डेट में इन्वेस्ट करते हैं, I and my CIO we look at the person's track record over the last 30 years. ये आदमी करता क्या है, डिफरेंट मार्केट्स में उसने क्या बोला है, 1999 में ये कंपनी ने क्या किया था,
2007 में ये कंपनी ने क्या किया था, 2009 में ये कंपनी ने क्या किया था, क्राइसिस के टाइम ये कंपनी ने क्या किया था. Similarly, you should have a judgment on us कि निमेश शाह मुझे क्या बोलते थे. 2000, your father has the complete history, so your father has to have that judgment. Is this company trustable? The quality of employees that this company is having, are they people whom he would trust? It's a judgment, right? It's a judgment of a person who has seen cycles, right? So your father's judgment on all of us, because when we invest with companies, we take a judgment on those promoters, right? The people behind those companies are very important for me when I'm giving my money to somebody else. Similarly, when you are entrusting with us with your client's money, you should have a judgment on us as people, right? That is the returns तो हो जाएंगे एवरेज. लाइफ में सब कुछ मीन रिवर्ट होता है. वो जो बहुत चला होता है वो नहीं चलता है. लेकिन पहले लास्ट 3 साल में क्या चल रहा था, क्वालिटी एट एनी प्राइस वाज वर्किंग वेरी वेल, राइट? क्वालिटी एट एनी प्राइस. कोई कंपनी ले लीजिए, एफएमसीजी कंपनी ले लीजिए, 870 का पी, 80 का पी. हमने एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है तो हमने 30 का पी पे पोस्ट डिमोनेटाइजेशन लिया था उसको. 50 का पी हो गया, हमने बोला हमारा पैसा 67% ऊपर हो गया, हम बेच देते हैं. हमने बेच दिया, राइट? 50 का पी पे हमने लगा कि बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, हमने 50 के पी पे बेच दिया. वो आज 70 का पी चल रहा है. और एक कंपनी है नूडल्स बनाती है, राइट? बहुत अच्छी कंपनी है, 15% से ग्रो हो रही है हर साल, पर उसका मार्केट पी कितना, 85 का पी है उसका, राइट? A very good company growing at 15%. You are a CFA also, right? From all the academics that you've done. Tell me, how can you justify a PE ratio of 85 when the company's growth is 15% per annum? Company profit 5 साल में डबल कर पाएगी अगर इतना अच्छा ग्रो होगी, पर उसका PE ratio 85 पे है. 85 years का अर्निंग आपको आज चाहिए उसके लिए. So it is just not possible to sustain such high valuations. So do you, as what has been our behavior been? Do we go and invest what is fashionable in the market, or are we ready to take the difficult calls and live through a cycle? We had taken through that difficult. We had invested in pharma. Pharma has done well. We had invested in telecom, right? Telecom has done well. We had invested in metals. Metals has done well, right? Now we have invested in PSUs, right? We have to expect PSUs to do well, right? So वो आगे दिखेगा. अभी आगे जाके हम कहाँ पे bullish है? We are bullish on utility sector. राइट? हमको यूटिलिटीज बहुत अच्छी लगती है. ये देश की पावर कंपनी एक बहुत बढ़िया पावर कंपनी है जो 50% ऑफ द पावर ये देश में कंट्रोल करती है, राइट? इट इज अवेलेबल एट अ सिंगल डिजिट पी. सिंगल डिजिट पी. कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो होने वाला है जैसे ही उसका कैपिटल. अगर नेक्स्ट 3 साल में हमने जो रिसर्च किया है, हमको लगता है पावर सेक्टर में इतना पेसिमिज्म है, पर सरकार ने तो बोल दिया है कि रिटर्न ऑन इक्विटी का 15.5% सरकार ने नेक्स्ट 5 साल की पॉलिसी लिख के दे दी है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसका अच्छा होने वाला है. आगे जाके उसका ईपीएस बढ़ने वाला है, बिकॉज उसका बहुत सारा फिक्स एसेट जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है. यू आर आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू नो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स एसेट एंड योर रिटर्न ऑन इक्विटी स्टार्ट. सो यूटिलिटी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, पावर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्ड है. तो हमको लोगों ने, आपने भी आके पूछा था, आपने ये एक पावर कंपनी में इतना सारा स्टॉक क्यों ले लिया? बिकॉज हमारा कन्विक्शन है उस पर कि अगर एक अच्छा कंपनी जिसका प्रॉफिट ईपीएस ग्रो होने वाला है, हमारे हिसाब से वो सिंगल डिजिट पी पे मिल रहा है, 10 साल से वो कंपनी का प्राइस उधर का उधर है या शायद डाउन है, राइट? सो देन इट इज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. इट माइट हैव पेन. सो लास्ट 1.5 years we have had the pain of it, but over a period of time we believe that this company will grow. So investing in those utilities, we had invested in telecom, that has done well. We had invested in pharma, it has done well. So I feel that this current investment of PSUs that we have invested in utility companies, that over a period of time will give us return. हम select private banks जिनका wide, which have got a huge distribution, retail deposits जिनको मिल रही है, और जिन्होंने asset side भी अभी because of COVID and moratorium and all, the share prices of private sector banks have not gone up, but some private sector banks can do well over a period of time. So you have to see our behavior. You asked me what are the kind of what is the advisor's role. Advisor's role is to take a judgment on the fund managers, right? It is a judgment that you will take. Your father has tracked us for last 15-20 years, so he should be able to take a judgment के लाइफ में ये काम ठीक करेंगे, ये लोग ethical है कि नहीं, right? It's very important that when you are managing somebody else's money, your ethical level should be above anybody's doubt.
Absolutely right. So that governance standards should be very good. The kind of companies, you should also track the kind of companies that you invest in. Are these companies which have got a great governance track record, right? Everything in life, you cannot, if the guy is not distributing profits with the minority shareholders, you cannot trust him with your investors' money. So what we have been saying at various phases of the market is very important. एब्सोल्युटली राइट सर, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर. सर फाइनली आप हमारी इन्वेस्टर फैमिली को जानते ही है, उसी के साथ साथ हमारी यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स फैमिली भी हो चुकी है, अबाउट 2 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं. हमारी इन्वेस्टर फैमिली और सब्सक्राइबर फैमिली के लिए आपकी तरफ से कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज, कोई फाइनल टेक जो आप उन सभी तक पहुंचाना चाहते हैं? See, both you and me should be focused on only on one thing, that be contra-cyclical, don't be pro-cyclical. Contra-cyclical will ensure that you lose less, right? And in life, when you lose less, you tend to make money. हर market ऐसा नहीं होता है जिसमें आप maximum कमाने के दिखे. So if I and you are able to convert our investors into contra-cyclical, that will be success. Don't look at only past returns and invest. Past return is a very good indicator, whereas long-term past returns are a good indicator whether the company is managing money responsibly or not. But sometimes if the AMC is good, past returns are not that great. Also, it might be a good time to invest. अगर एक साल पहले हमारा एक फंड था, वैल्यू फंड था, तो वैल्यू स्टॉक्स चल ही नहीं रहा था. हमारा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड था, जो एक साल पहले लोग बोलते थे अभी कभी चलेगा, ये चल नहीं रहा है. बट जब चलता नहीं है और फंड मैनेजमेंट कंपनी अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा है, तो डटे रहना है उस पर. यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम अ फंड व्हेन द चिप्स आर डाउन, राइट? सो नाउ लास्ट 1 year it has done very well, right? So value investing is a way to invest in life. That is another message that I want to give to your investors. It works over a period of time. Last 3 years it may not have worked. Quality at any price has worked. If you see what is happening since March 2020, all value sectors are coming back. Market is getting broader. जो केवल 10 स्टॉक ऊपर जा रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में वाइडर हो रहा है. टेलीकॉम अच्छा चल गया, मेटल्स अच्छा चल गया, फार्मा अच्छा चल गया. So market is getting broader and broader with more money coming into the country and more people trading. So all the best to you and your investors. You and your company, your father and you have done a very good job over the last so many years. This firm has done a very good job. You can corporatize it. You can make it more digital. You can bring technology in with you coming in. So I think both of you together, your father's wisdom and your technology bent of mind will take the firm very well. So I'm very happy to be associated with your company and all the best to you and your investors. Thank you. Thank you so much, sir, for coming in and for giving so much of knowledge and time. It means a lot to us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.